अभी ज़रा सा फीवर लग, अच्छा सॉरी. Good morning children. Now this is the lecture 3 class 12th current electricity and it is the unit 2nd. Today we are just going to discuss the first topic, that is the temperature dependence of resistivity. How the resistivity is dependent on the temperature. So it is different for in case of the conductors, it is different in the case of alloys, it is different in the case of the semiconductors and the insulators. That means ki temperature is dependence of resistivity is different in different cases. So take the first case, in case of the metallic conductors, the formula for the resistivity, rho is equal to m upon n e square into tau, where m is the mass of the electrons, n is the number of electrons, e is the charge on the electrons and tau is the relaxation time. So if the temperature of the conductor increases, the vibrations of the positive ions in the conductors also increases, and due to this free electrons collide more frequently with the vibrating ions, and as a result the average relaxation time decreases. ये बार बार जो कोलिजन होगा उससे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम. सो वेरी क्लियर कि अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली द रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी. सो रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली विद द टेम्परेचर. लीनियरली का मतलब है इन द सेम प्रोपोर्शन. जिस प्रोपोर्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी. तो द फॉर्मूला इज रो टी इज इक्वल टू रो जीरो विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, एंड सिमिलरली वी कैन राइट द सेम फॉर्मूला फॉर द रेसिस्टेंस. आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा इंटू टी. आर टी इज द resistance at the temperature T, R0 is the resistance at 0 degree Celsius, 0 degree Kelvin, and alpha is the temperature coefficient of resistivity. For metals or for the conductors, the value of alpha is positive. Now if we solve, RT minus R0 is equal to R0 into alpha into T, therefore alpha is equal to RT minus R0 upon R0 into T, or alpha is equal to rho T minus rho 0 upon rho 0 into T. The similar type of the formula is being obtained in the case of the resistance as well as for the resistivity. Now take the second case, how the resistivity of an alloy is dependent on the temperature. For an example, the nichrome is the alloy, manganese is the alloy, constantan is the alloy. In the case of the manganese, the resistance is very high, but alpha is very small, that is 0.00001 per degree Celsius, and because of this reason it is an excellent substance for making the standard resistance coil. जो प्रैक्टिकल्स में जिन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, चाहे वो आपका मीटर ब्रिज हो चाहे पोटेंशियोमीटर हो, जिसमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसमें इन्हीं एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं. या तो मैंगनीन इस्तेमाल करते हैं या फिर कॉन्स्टेंटन इस्तेमाल करते हैं. जैसे मीटर ब्रिज में वो 1 मीटर का वायर लगाया जाता है, तो दैट इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर अल्फा इज वेरी स्मॉल, अगर अल्फा जितना कम होगा उतना ही रेजिस्टेंस में वेरिएशंस कम होंगे. तो चूंकि हम इसको यूज कर रहे हैं 2 वोल्ट पे 4 वोल्ट पे, तो डेफिनेटली टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है. तो उस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. इसलिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए ये सबसे अच्छा मटेरियल माना जाता है फॉर मेकिंग सच टाइप ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल. एक चीज़ और समझने की है यहाँ पे कि रेसिस्टिविटी इन द केस ऑफ द एलॉय ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि इसकी बहुत वीक डिपेंडेंस है
of temperature on the resistivity. The resistivity has very weak dependence on of temperature. Now take the third example. In case of the semiconductors and the insulators, इस केस में रो डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टेम्परेचर, यानी कि अगर जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो रो की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इसी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि रो डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. अभी इसके पहले आपने वर्ड यूज किया था रो इंक्रीजेस लीनियरली. लीनियरली मीन्स कि इन द सेम प्रोपोर्शन, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उसी रेशियो में रेसिस्टिविटी बढ़ेगी. लेकिन अगर हम कहते हैं कि रो डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द टेम्परेचर, इसका मतलब अगर हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो रो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, यानी एक्सपोनेंशियल में डिक्रीज करेगा. तो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू रो जीरो ई टू द पावर ई जी अपॉन के टी, वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड ई जी इज द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड. किसी भी मटेरियल के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जितना एनर्जी गैप होता है उसी से हम क्लियर करते हैं कि वेदर इट एक्ट्स एज अ कंडक्टर और द सेमीकंडक्टर और द इंसुलेटर. जो कंडक्टर्स हैं उसके बीच में ये गैप बिल्कुल ही नहीं होता है, यानी कि ये दोनों ओवरलैप करते हैं. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप थोड़ा होता है, जिसको कि आसानी से हम ओवरकम कर लेते हैं बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. लेकिन इंसुलेटर्स में ये गैप इतना ज़्यादा होता है कि इसको किसी भी एक्सटर्नल मीन्स से हम लोग इसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसमें कंडक्शन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है. तो ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ये हम पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. अगर हमें रो और टी का ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए इन द केस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रो की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है. और कर्व में है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, कर्व का मतलब ही है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती जा रही है. फिर से यानी कि टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, यानी डिक्रीज कर जाएगी. Now take the second topic of this chapter. This is well known to you, that is the electrical energy and the electric power. This you have read in the class 10. The total work done by the source of EMF in maintaining the electric current in the circuit. The total work done by the source of EMF in maintaining the electric current in the circuit for a given time is called the electric energy consumed in the circuit. V is equal to IR, this is the Ohm's law. Q is equal to IT, this is the definition of the current. And W is equal to VQ, this is the formula for potential difference. So if you substitute the value of Q is equal to IT, then it is becoming the VI into T. So electrical energy or this work done is equal to VIT. Then come to the power, the rate of which work is done by the source of EMF in maintaining the electric current in a circuit is called the electric power of the circuit. So P is equal to W or electrical energy upon time. So first formula is, if you substitute the E is equal to VIT, you will get P is equal to VI. 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. If you put V is equal to IR in this equation number 1, you will get P is equal to I square into R. This is the second equation. If you put I is equal to V upon R in the equation number 1, you will get another formula for calculating the power, that is the P is equal to V square upon R. So these are the three formulae for P is equal to VI and P is equal to I square into R and P is equal to V square upon R for calculating the electrical power. Similarly, we can calculate the three formulae for calculating the electrical work done or electric energy by putting these two values, V is equal to IR, I is equal to V upon R. तो P में आपका T कैंसिल हो गया था, बिकॉज T से डिवाइड करना था, W अपॉन T था, यहाँ पे T रहेगा, यानी कि P इज इक्वल टू VIT आ जाएगा, सॉरी E इज इक्वल टू VIT आ जाएगा और E इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RT आ जाएगा एंड E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड. टेक द कमर्शियल और द प्रैक्टिकल यूनिट.
it is the electrical energy or the work done is equal to power into T. Basic thing is that the power is मैं हटाया था पुल पे यहाँ कहाँ से करना पड़ेगा यहाँ से now commercial or the practical units, the electrical energy or the electrical work done is equal to P into T. The fundamental thing is that the power should be taken in kilowatts and time is in hours. So the unit of the electrical energy is kWh yani kilowatt hour, or this is also known as the 1 unit. 1 kWh is equal to 10 raised power 3 joules per second into 60 into 60 seconds. Calculate it, so you will get the relation between the joules and the kilowatt hour. So 1 kWh is equal to 3.6 into 10 raised power 6 joules. Now the third topic is the color code of the carbon resistances. इसको समझ लीजिए. For this year it is not in your course, but it is very simple thing. Just try to understand. B.B. Roy of Great Britain has a very good wife. The color is the black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey and white. Starting from the black, 0 फिगर इसकी है या नंबर आप कह सकते हैं, फिगर या नंबर is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and multiplier is 10 raised power 0, 10 raised power 0 is 1, 10 raised power 1, 2, 10 raised power 3 and so on. The tolerance color is only the gold, silver and no color. No color means the transparent color, just like the water. So tolerance is 5% for the gold and 10% for the silver and 20% for the no color. Take one very simple example. Suppose you are having the one carbon resistance on which the color code lines are there, A, B, C, D. A is the brown color, B is the green color, C is the orange color and D is the tolerance ring, that is made up of silver. तो जिधर सिल्वर रिंग होगी, जिधर टॉलरेंस रिंग होगी, उसके अपोजिट साइड से कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे. तो फर्स्ट रिंग इज ऑफ द नंबर, सेकंड रिंग इज ऑफ द नंबर एंड थर्ड रिंग इज ऑफ द मल्टीप्लायर. तो देखिए ब्राउन का आपका नंबर कितना है, 1 है, ग्रीन का नंबर है 5, तो आप ये 15 हो गया, इनटू मल्टीप्लायर है आपका ऑरेंज का 10 रेज़ टू द पावर 3. तो द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस वी कैन से 15 इंटू 10 रेज़ पावर 3 ओम्स प्लस माइनस, और सिल्वर की टॉलरेंस रिंग लगी हुई है, दैट मीन्स द 10% इसमें वेरिएशंस लिया जा सकता है. सिमिलरली एक और ले लीजिए, ए बी सी एंड डी, यहाँ पे गोल्ड की टॉलरेंस रिंग लगी हुई है, टॉलरेंस रिंग के ऑपोजिट साइड से काउंटिंग की जाती है. तो यहाँ पे ए फर्स्ट रिंग होगी, यानी कि रेड इज ऑफ द नंबर, रेड का नंबर है 2, रेड फिर है उसका भी नंबर 2 हो जाएगा. देन इनटू मल्टीप्लायर, ग्रीन का मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर 5, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 ओम्स, और गोल्ड रिंग लगी हुई है टॉलरेंस रिंग, तो प्लस माइनस 5% का वेरिएशन इसमें एडमिसिबल होगा. तो रेसिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 22 इंटू 10 रेज़ पावर 5 ओम्स प्लस माइनस tolerance is 5%. Now resistors in combinations, series combination. इस series combination capacitors में हम लोग पढ़ चुके हैं. तो R1, R2 and R3, the current I is same, but the potential or voltage is distributed according to the value of resistances. तो V is equal to V1 plus V2 plus V3. I R equivalent is equal to I R1 plus I R2 plus I R3. So R equivalent, I is cancelled from everywhere. R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. And in the parallel combination, what is the difference? The I is distributed, because when the I reaches to the point A, it distributes according to the value of the resistances R1, R2 and R3 into 3 parts. It is getting the 3 ways just to flow. तो मान लीजिए कि इस R में I1 फ्लो कर रहा है, इसमें R2 में I2 फ्लो कर रहा है और R3 में I3 फ्लो कर रहा है. तो I इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ रेसिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3. बट
in between the 2 points A and B the voltage remains the same. तो फिर से एक बार समझ लेते हैं. In the series combination current remains the same, voltage is distributed according to the value of resistances, and in the parallel combination the current is distributed but the potential remains the same. So here V upon R equivalent is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. V will be cancelled out from everywhere. 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So these are the series combination formula for the resistance. Remember children, we have also calculated the series combination and the parallel combination in the case of the capacitors also. So they are exactly reverse. In the capacitors when they are connected in series, तो वहाँ पे फॉर्मूला हमारा आया था 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, यानी कि बिल्कुल इसके रिवर्स फॉर्मूले आए थे. ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप कैपेसिटर का सीरीज फॉर्मूला लगा रहे हैं या रेसिस्टेंस का सीरीज फॉर्मूला लगा रहे हैं. एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें सीरीज में दिया हुआ है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 40 ओम्स एंड पैरेलल में दिया हुआ है Rp इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 7.5 ओम्स. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2. The R1 R2 is equal to 7.5 into R1 plus R2. The value of the R1 plus R2 is given 40. It is 300. एक फॉर्मूला इसमें लग रहा है R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2. ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 300. तो दिस इज बिकम 400 एंड यू विल गेट R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 20. नाउ यू आर गेटिंग द टू इक्वेशंस. R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 20 and R1 plus R2 is equal to 40. This is given equation number first. So if you take these two equations, you can easily get the values of the R1 and R2. R2 will be cancelled out. To R1 is equal to 60 and R1 is equal to 30 ohms, and substitute this value. 30 plus R2 is equal to 40. R2 is equal to 40 minus 30 is equal to 10 ohms. बच्चों मैं ये बता दे रहा हूँ, कभी कभी ये फॉर्मूला हमारे दिमाग से स्लिप हो जाता है 10th में पढ़ने के बावजूद भी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि ये फॉर्मूला आपको फिर से रिवाइज हो जाए. यानी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2. नाउ द फिफ्थ टॉपिक इज द इंटरनल रेसिस्टेंस एंड द EMF ऑफ द सेल. तो फर्स्ट इंटरनल रेसिस्टेंस. इंटरनल रेसिस्टेंस इट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल. कोई भी सेल अगर आप बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट जरूर होना चाहिए. व्हेन I flows is called the small r, that is the internal resistance of the cell. That means कि when we are making the cell, we are having the electrolyte solution. So two electrodes and the one electrolytic solution. For an example, take the example of the Leclanché shell. So if you are taking the Leclanché shell, you are having the carbon rod as a positive electrode and zinc rod as a negative electrode and NH4Cl as an electrolyte. तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उन आयंस को चलने में रेसिस्टेंस पैदा करता है एंड दैट इज नोन एज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल. So the resistance offered by the electrolyte of the cell when the current I flows is called the internal resistance of cell. B, the maximum potential difference between the two electrodes of the cell in an open circuit. Open circuit means when no current is drawn from the cell. It is called the electromotive force or the EMF of the cell. Third term is the terminal potential difference. The potential difference between the two electrodes of the cell in an closed circuit. Closed circuit means when the current is drawn from the cell is called the terminal potential difference. That means EMF is always greater than the terminal potential difference because कुछ ना कुछ potential loss हो जाता है because of the internal resistance of the cell. E is always greater than V. E is the EMF and V is the terminal potential difference. So V is equal to E minus IR and R is the internal resistance. इतना वोल्टेज जो है वो सेल के अक्रॉस वेस्ट होता है. सो IR इज द पोटेंशियल ड्रॉप, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल लॉस्ट
या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. So V is equal to E minus 0 when the current I is equal to 0, that means it is in the open circuit. जब open circuit में होगा तो this terminal potential difference is equal to the EMF. V is equal to IR, this is the Ohm's law. V is equal to, substitute the value of I, E upon R plus R into R. Then R plus R is equal to E upon V into R, and the formula for the internal resistance is equal to E upon V minus 1 into capital R. Now take the fifth topic, that is the grouping of the cells in the series combination. Suppose we are taking the n cells in the series combination, then I is equal to total EMF upon total resistance. तो कितना टोटल EMF कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा. तो n E अपॉन टोटल R प्लस NR इज द टोटल रेसिस्टेंस बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. R R R और n सेल्स जुड़े हुए हैं तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा n इंटू R. तो I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR. If the value of the external resistance R is very very greater than NR, then I is equal to NE upon R. यानी कि ये n टाइम्स हो जाएगा द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल. तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, जनरली ऐसा ही होता है, तो हम सेल्स की ग्रुपिंग किस में करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिल जाती है. यानी जितने सेल हम जोड़ेंगे उतने टाइम्स हमें करंट मिल जाएगी. यानी I इज इक्वल टू n टाइम्स E अपॉन R. अगर यहाँ पे E1 और E2 दो सेल हों जिनके EMF अलग अलग हों, यहाँ पे EMF सबके एक ही थे, तो इस तरह का एक फॉर्मूला बनता है I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2. तो अगर ये दो सेल का है जिनके EMF अलग अलग हैं, तो मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख दिया है. स्टार आप देख रहे हैं, स्टार बना होगा यहाँ पे, लेकिन इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है. बी, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो अगर EMF सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो M सेल्स लगे हुए हैं, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R M टाइम्स. तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R. अगर दो लगे हुए तो 2 बाई R, 3 लगे हैं तो 3 बाई R, अगर M लगे हुए तो M बाई R. तो R डैश की वैल्यू हो जाएगी R अपॉन M, रिवर्स हो जाएगा. तो I इज इक्वल टू E अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा आ गया है R अपॉन M. यहाँ पे इस केस को देखिए कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तब ये वैल्यू जो है वो R प्लस, यानी कि तब हम R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा R अपॉन M. तो I इज इक्वल टू M इंटू E अपॉन R. तब ये M टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल. यानी कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स वो बहुत कम होगी, तब ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए फायदेमंद होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि तभी हमें करंट जो है वो M टाइम्स मिल पाएगी. अदरवाइज पैरेलल में बहुत सारे सेल्स के जोड़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा. अगर R बहुत ग्रेटर होगा तो हमें फिर उतनी ही करंट मिलेगी जितनी एक सेल से मिल रही थी. तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हम तभी करेंगे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स से बहुत कम होगा. इसी तरीके से अगर हमारे पास दो E1 और E2 डिफरेंट EMF के सेल्स हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, करंट I फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2. तो R की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. यहाँ पे E की वैल्यू आप रख देंगे E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, और ये R इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो ये फॉर्मूला, ये भी आपका मैं स्टार बना दे रहा हूँ, इसको एज इट इज आपको याद रखना है. समटाइम्स इट इज नीडेड इन द टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स. इसमें हमने
m रोज ले लिए हैं, यानी कितनी रोज है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये लास्ट m रो, और एक रो में कितने सेल्स लगे हुए हैं, दैट इज द n सेल्स लगे हुए हैं, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। क्लियर कर लीजिए फिर से, एक रो में आपके n सेल्स हैं और इसी तरह की n सेल्स के कॉम्बिनेशन की कितनी रोज हैं, वो m रोज हमने लिए हैं। तो कैपिटल N कितना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, यानी कि जितने रोज हैं, और यानी कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, m इंटू n। एक रो में आपके n सेल्स हैं, इसलिए m रोज में कितने हो जाएंगे, m इंटू n। वेरी क्लियर। टोटल EMF कितना हो जाएगा, n इंटू ई हो जाएगा, और ये चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr अप टू द m टाइम्स, तो m/nr हो जाएगा, यानी कि 1 के लिए 1/nr, 2 के लिए 2/nr, 3 के लिए 3/nr, इसलिए m के लिए m/nr, m रोज के लिए m/nr। तो इससे r डैश की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स nr/m, तो I इज इक्वल टू NE/r प्लस r डैश, NE आ जाएगा कैपिटल R प्लस R डैश की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है nr/m, सो NE/mr प्लस nr/m, एलसीएम ले लिया है, तो ये आ जाएगा आपका MNE/mr प्लस nr, और ये mn जो हो जाएगा नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल N हो जाएगा, n इज इक्वल टू m इंटू n, n इंटू E/mr प्लस nr। I विल बी मैक्सिमम। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझ लें कि I जो करंट कब मैक्सिमम मिलेगा, इफ द डिनोमिनेटर फैक्टर, ये जो mr प्लस nr इज मिनिमम, जब ये डिनोमिनेटर फैक्टर मिनिमम होगा तभी ये हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा, यानी कि तब हमारे लिए मिक्स्ड ग्रुपिंग फायदेमंद होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब ये मिनिमम कैसे होगा, इसके लिए हमने थोड़ी सी सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाई है। यहाँ पे mr प्लस nr को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट nr का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट mr इंटू nr और प्लस 2 अंडर रूट mr प्लस अंडर रूट nr, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली mr प्लस nr ही आपका बचेगा। तो mr माइनस nr का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट mn इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r। mr प्लस nr विल बी मिनिमम। ये कब मिनिमम होगा, इफ ये जो एक टर्म है अंडर रूट mr माइनस nr का होल स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, और वी कैन से mr इज इक्वल टू nr हो जाए, तो r की वैल्यू हो जाएगी nr/m। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो r इज इक्वल टू nr/m जब होगा तब ये करंट हमको मैक्सिमम मिलेगी। यानी कि इस सिंपल मैथमेटिक्स से ये क्लियर हो गया कि जब mr और nr दोनों इक्वल होंगे तभी हमें करंट मैक्सिमम मिलेगी इन द मिक्स्ड ग्रुपिंग, या ये कह सकते हैं कि मिक्स्ड ग्रुपिंग इज यूजफुल फॉर अस फॉर मेकिंग द सेवरल सेल्स इन द सीरीज एंड द पैरेलल, दैट इज द मिक्स्ड ग्रुपिंग। इफ the value of external resistance is equal to nr/m. So this is for all today's lecture, and on the next lecture we'll be continuing the some numerical problems and some conceptual problems also. Thank you children, thank you very much.